And now I'll request you to please introduce our chief guest, Dr. Prabhajot Kulkarni, to all of us, and please introduce her. Sure. Well, let me tell you, I know Dr. Prabhajot Kulkarni when she was in Vivekananda College. And how I came in contact, I'll tell you. She was organizing a workshop, and that workshop was for the education students, BLEd students in Ramakrishna Mission. So she called me, could you come and talk? That's the first time, Prabhajotji, I met you. You remember that? We met at that time, and she's a wonderful person. And she is a person full of enthusiasm, full of energy, full of spirit. And she has been the former principal of Maharishi Valmiki College of Education. She did her PhD in education from Central Institute of Education, University of Delhi in 1977. Her area of specialization was guidance and counseling. Later took up research in the use of drama in education, which is a very interesting thing. देखिए, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना, बोरिंग क्लास हो जाती है, कौन सीखेगा? She took drama to educate her girls and taught in Vivekananda College from 1974 till 2002, when she joined the Maharishi Valmiki College of Education as its principal. Published papers in various journals and books, drama in education, Punjabi plays for children. It is light and other plays for children, like contributed to National Focus Group of Education, Arts, Music and Theatre for National Curriculum Framework 2005, Indian Institute of Teacher Education for its 5-year program in teacher education, preparation of curriculum for theatre in education from National School of Drama, Tripura Center, curriculum development for arts education, NCTE, NCERT, and other bodies. Formerly member governing body or governing council, Punjabi Academy, Government of NCT Delhi, governing council of Bhai Veer Singh Sahitya Sadan, and presently member of governing council, Indus Quality Foundation. Actually, this is the forum, and foundation which actually spreads values among the school children. And Forum for Restoration of National Values, presently engaged with Sri Aurobindo Ashram Delhi branch, Sri Aurobindo Society Puducherry, Rudrapur Center of SAS, engaged in integral education of Sri Aurobindo for in-service and pre-service program in Delhi and other parts of country. Her interests are in painting and poetry. I've seen her. She has given me so many cards which she has painted, and she writes good poetry. Let me share another incident. When I was retiring, she came to the college. Then, Lakshmi, I'll conduct your farewell. She came and do it. No principal comes and says that. And with so much of love and affection she did for me, I can never forget it in my life. That is the way she treats everybody. And I think we have got an appropriate person as the chief guest today for our International Women's. Thank you very much. अरे यार तू करा दे, मुझे 2 मिनट में निकलना है। डॉक्टर साहब बस ये चीफ गेस्ट का वेलकम हो जाए, फिर उसके बाद डॉक्टर ज्योति का आता है। जी, स्वागत है आपका डॉक्टर प्रभजोत जी, और मैं चाहूंगी कि आप भी 2 शब्द हमसे कहें। सबको आज इस खास दिन की बधाई तो हम सबको दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी ये जो संस्था है, जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, हमने
केवल आज ही नहीं सुना, बहुत दिनों से इसके बारे में हम बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं और कुछ चीजें हमने YouTube पे भी देखी हैं। पिछले वर्ष जो आपने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया वाओ इंडिया की तरफ से 8 मार्च को, आज ही के दिन, तो उसमें एक नाटक ने हमें बहुत प्रभावित किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये जो स्लोगन आपने लेके उसके ऊपर पूरा कंसेप्चुअलाइज किया और नरेशन डाला, झलकियां प्रस्तुत की और बहुत अच्छा एक ड्रामेटिक कोलाज बना के आपने जो वो चीज रखी वो बहुत अच्छी लगी हमें। और हमने ये सोचा कि क्यों ना इस तरह की झलकियां, इस तरह के नरेटिव्स, इस तरह की बातचीत आप लोग वाओ इंडिया की तरफ से कॉलेजों में, स्कूलों में भी करें, वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम का ही हिस्सा हो सकता है। आपके जितने भी कार्यक्रम हमने सुने अभी तक, एक चीज जो हमें बड़ी कचोट रही है, जो हमेशा ही कचोटती रही है, आज ही नहीं, सब लोग 8 मार्च के दिन बहुत तारीफ तो करते हैं लड़कियों की, औरतों की, उनकी उपलब्धियों की, और वो जिस तरह से चुनौतियों का सामना करती हैं, ये सब कुदरत की देन तो है। लेकिन कई बार ये देख के बड़ा दुख भी होता है कि इतना कुछ होने के बावजूद क्यों हमारे समाज के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर अभी भी वो सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं जो निकल जानी चाहिए, जो आज की तारीख में 2021 में हमें नहीं दिखनी चाहिए। नहीं तो हम नहीं ला सकते, तो कम से कम तो हो। अभी कुछ दिन पहले ही पूर्णिमा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया किस तरह से ये लोग, आप लोग काम करते हैं। वृंदावन में भी कई बच्चों के ऑर्फन एज जो हैं उनके साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, कई विधवा आश्रमों के साथ आप जुड़े हुए हैं जहां आप लोग जाके बहुत सारा काम करते हैं स्वास्थ्य का। ये चीजें प्रभावित तो बहुत करती हैं, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है कि कोई संस्था है ऐसी जो औरतों के लिए सोच रही है बहुत कुछ और गहराई तक जाकर इस तरह का काम भी कर रही है। दुख यही होता है कि क्यों नहीं हम इस चीज को कम कर पा रहे। क्या वजह है कि अभी भी हमें विधवाओं को घर से निकालना है, उनको फेंक देना है सड़क पे, या बच्ची को पैदा होते कूड़े के डिब्बे में डाल देना है या सड़क पे? ये बड़े पेचीदा प्रश्न हैं, इनका जवाब हमें ही ढूंढना होगा। इनके लिए औरत ही आगे आएगी, औरत ही साहस करेगी, औरत ही इसको अपना एक चैलेंज लेगी, चुनौती लेगी, तभी ये दूर हो सकता है। ऐसे नहीं अगर हम निर्भर करें बाकी संस्थाओं पर या सरकार के ऊपर या फिर इंडिविजुअल के ऊपर, ऐसा होने की संभावना हमें कम दिखती है। औरतों को ही आगे आना होगा। आपने जिस तरह के उद्देश्य अपने बनाए, जिस ढंग से आप उन उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए हैं और एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो हमें पता चला, और खास तौर पर जब हम प्रिंसिपल थे, हमें मालूम है तब वाओ इंडिया तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर शारदा जैन और उनकी टीम ईस्ट दिल्ली के कॉलेजों में बिना किसी धनराशि के, बिना किसी भी तरह की, कहना चाहिए ऑब्लिगेशन के, या किसी भी तरह का कोई एहसान भी नहीं, किसी तरह का कोई वो धन्यवाद भी नहीं लेना चाहती थी, हमें याद है। और वो आया करती थी अपनी टीम के साथ और एडोलेसेंट हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे विषयों पर बहुत अच्छी वर्कशॉप्स करती थी। पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप्स होती थी, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की। और हमें याद है हमारे टीचर्स जो होते थे, जो बनने वाले टीचर्स हैं, बीएड स्टूडेंट्स, बहुत दिलचस्पी के साथ इन वर्कशॉप्स में भाग लेते थे। वैसी वर्कशॉप्स और अभी होने की जरूरत है। हमें उम्मीद है डॉक्टर शारदा जैन इस काम को और आगे लेके जाएंगी, क्योंकि आज की तारीख में
ये जरूरत महसूस हुई कि हमें अपने एकेडमिक फील्ड के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर भी विमेन स्टडीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे विषयों को शामिल करना होगा। और कई जगह पर इन विषयों को शामिल कर लिया गया हिंदुस्तान के अंदर, और इनके ऊपर काम भी हो रहा है। हम चाहेंगे, यही एक हमें उम्मीद है वाव से, कि इस तरह के काम वो भी उठा पाएंगे और करेंगे। तो एडोलेसेंट हेल्थ, खासतौर पर लड़कियों की, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर अगर हमारे कॉलेजेस में, हमारे खास तौर पर ईस्ट दिल्ली के स्कूलों में, कॉलेजों में आपके वर्कशॉप्स हों, आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों, जब भी मौका मिले तो उससे बहुत फायदा होगा। और एक बात कि आजकल कॉलेजों में मेडिकल चेकअप्स होने बंद हो गए हैं। एक जमाना था, 70s का दौर था, 80s का दौर था, हमें याद है, मेडिकल चेकअप्स होते थे, हेल्थ चेकअप्स होते थे, उसी में डॉक्टर्स थोड़े थोड़े नसीहतें देते थे लड़कियों को। वो भी कमी हमें लगता है आप ही के द्वारा पूरी हो सकती है, अगर वो काम आप लोग लें अपने हाथ में। तो समुदाय, जनरल समुदाय के साथ साथ कॉलेजों पर फोकस हो, जहां पर अब लड़कियां केवल दिल्ली की नहीं आती, दिल्ली के बाहर के राज्यों से भी आती हैं, बिल्कुल। और वो ऐसे इलाकों से आती हैं जहां पर लड़कियों को इस दिशा में बहुत ही कम, हम तो कहेंगे ना के बराबर शिक्षा दी जाती है। स्वास्थ्य तो लास्ट है लिस्ट के अंदर हमारे समाज में, और आप लोग स्वास्थ्य को ही सबसे ऊपर ले आए हैं। ये मुबारक का विषय है, बहुत ही आप सबको हम मुबारक देना चाहते हैं। सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, अपने आप को व्यक्त किया है। डॉक्टर शारदा जैन, आप तो खास मुबारकबाद के काबिल हैं, और आपके अंदर इतनी इंस्पिरेशन है, आपके अंदर भरा पड़ा है मोटिवेशन, और आपकी जोड़ी भी बहुत खूब है लक्ष्मी के साथ, कि आप लोग खुद सेल्फ मोटिवेटेड इतने ज्यादा हैं कि किसी और को, तीसरे व्यक्ति को कुछ बोलने की या कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट का कुछ काम हो इस तरह का कि वो मोटिवेशनल स्पीच दे। सॉरी, हियर एनीबॉडी विल फेल। आप अपने आप में काफी हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं और भरपूर हैं, पूर्ण हैं। आज का जो थीम है चूज टू चैलेंज, आई थिंक आपने तो पहले ही उसको चुन लिया है। आप लोग तो बहुत पहले से आपने चॉइस ली हुई है चैलेंज की, और आप वो काम करते आ रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या बोलें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी टीम लगी रहे इसी तरह से, और जोश के साथ काम करें, एक बदलाव आए इस पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर। औरत अगर परफेक्ट है, औरत में परिपूर्णता है, तो हमें लगता है पूरा समाज परिपूर्ण हो जाता है। If the woman of the house is perfect, the family is perfect, and hence thereby one finds that the whole society becomes gradually perfect. We lead the society towards perfection by making ourselves perfect. इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई सबको, और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा काम जो कर रहे हैं इसको और ज्यादा गतिमान बनाए, और ज्यादा आप लोगों के अंदर डायनामिज्म आए, एनर्जी आए। ईश्वर आप सबको वो दे जिसकी जरूरत है, ताकि इस तरह का विजन आप लोग पूरा कर सकें। धन्यवाद। आप सबके बीच आके आज बहुत अच्छा लगा। काफी सारे कार्यक्रम हमें पूर्णिमा दिखाती रही हैं पहले भी, और हमने YouTube पे देखे हैं, और बहुत अच्छा लगा है हमेशा ही। आगे भी हमें सुनने को जब मिलेंगी ऐसी अच्छी बातें, तो मन खुश तो होता ही है, एक जिंदगी में होप नजर आती है, एक आशा बंधती है। धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत मुबारक पुनः। और बड़ी मतलब अचंभे की बात है कि डॉक्टर्स यहाँ हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, और बड़े क्रिएटिव हैं। दे आर, अदरवाइज इन लाइफ दे आर क्रिएटिव in medical terms, but to write poems, to sing and to create tunes for their own poems,
That is amazing. बिल्कुल So बिल्कुल। congratulations all of you, और आप सबको शुभकामनाएं इस दिन की और आने वाले सभी दिनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुलकर्णी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको एक बात बताएं कि अभी जो आपने स्कूल कॉलेजेस में ये सब करने के लिए कहा है, ये हम लोगों की ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, और इसके साथ साथ एडोलेसेंस के साथ साथ हम लोगों की एक प्लानिंग और भी चल रही है सेल्फ डिफेंस के स्कूल कॉलेजेस में करने की। तो ये दो चीजें हमारी लिस्ट में हैं, बहुत जल्दी ही हम लोग इस चीज को हाथ में लेने वाले हैं। पूर्णिमा जी, याद है हम और आप गए थे केएम कॉलेज में? जी जी, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हम लोगों का कुछ हुए भी हैं कॉलेजेस में, लेकिन इसको हम बढ़ाने की तरफ आप वो कर रहे हैं। आपके मोटिवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलकर्णी, और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने हमारा जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहती हैं। बहुत बहुत सुंदर पूर्णिमा जी। जी, आपकी इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभजोत। और